So we are just going the segments this preparations from so preparations preparation from acids देखिए कॉन्सेप्ट देखना एसिड जो होता है C डबल बॉन्ड O and OH group is there here. For sake of simplicity I am writing this way. How the reductions take place in the acid साथ साथ पे समझते जाना और लिखते जाना. That is the way you will go with this. So obviously what will happen if you are taking a strong reducing agent. So strong reducing agent 2 hydrogens will be added here. So you will get what? आपका जो O है वो OH में कन्वर्ट होगा. एक OH ऑलरेडी है और एक H. तो टेक्निकली हुआ क्या है? This is a pi bond broken down. ओके एक H इस पे आया और एक H इस पे आया. अब जैसे दो OH है on the same carbon it will becomes सेम कार्बन पे जैसे दो OH आते हैं तो it will be immediately lose a water molecules in the segments. So you will get what? It is converted into what? Respective. It will be converted into what? Respective aldehydes. Aldehyde further. So you will find there is a loss of these things. Aldehyde further then will be reduced to give you what? R. आपका H वही रहेगा और फिर से O के ऊपर एक H और H. तो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा प्राइमरी अल्कोहल्स. So mainly if you just go simply अगर फॉर्मेट में जाते हो तो you need what? Strong reducing agent which can provide nascent 4 hydrogens together. The common reducing agent which is used in the reductions of acid for H+12 syllabus, only 2 of them they are there. Okay, one is that lithium aluminium hydride in first step. Okay, dry ether, and in the second step you just take water. So one hydrogen come from lithium hydride as a H- ion, other hydrogen will come from water as a H+ ion. Or the another options you can reduce, that is what? You take B2H6. Okay, diborane also it can reduce. Diborane also it can be reduced in the segment. So you have a 2 options, either or, but it won't be reduced by hydrogens or NaBH4 or other mild reducing agent. And the final product you will get in the segments is what? R primary as alcohol you will get RCH2OH, and the side product will be what? Water in this case. If you got the concept, you just write what you will get. Suppose if you are taking dry ether, or you take THF is another ether है, THF ले सकते हो as a reducing agent. So just note down what are the product you will get if you are taking 4 moles of lithium aluminium hydride. Okay, you are taking lithium aluminium hydride. What are the product you will get in reactions? One. Second, if you are taking benzoic acid and 4 nascent hydrogens, you reduce in the presence of lithium aluminium hydride followed by what? Water. So ethanoic acid give you what? Ethanol, and the side product will be what? Water. In this case what you will get? You will get CH2OH on water is a side product. तो ये आपका benzoic acid लिया है, तो benzoic acid जो है it will be on the reductions give you what? Benzyl alcohol, और इसमें जो था आपका ethanol from ethanoic acid. So clear the concept from this. Just note down this. Yeah. बाकी दृश्यान को कम हो गया कॉन्सेप्ट है दीदी आ गई चिरागा
तो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ले लो। मिनट मैम। हाँ यस कर लीजिए। कौन कौन है? गर्व, तानिया एंड विशाखा। ठीक है। आपको हाइड्रोबोरेशन और सब करा दिया था, कुछ बचता नहीं। So shall we proceed further? So शुरू करो नेक्स्ट पेज की तरफ। Okay, the next preparations from esters. Preparations from esters. Okay, number मेरे को याद नहीं है। Preparations. Preparation from esters. From esters. Esters में ऐसा है बेटा, प्रिपरेशन जो है देखिए, एस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है R, C डबल बॉन्ड O, O and R डैश। If you just reduce by the hydrogens, तो पहले स्टेप में देखिए टेक्निकली समझिएगा, you need what hydrogens। तो पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ जाता है, you will get that segments। तो पहली हाइड्रोजन यहाँ जाएगी तो you will get what reductions give you what, यहाँ पर आपका अल्कोहल ये फॉर्म होगा, but this will be give what aldehyde, aldehyde further reduce, aldehyde further reduced by one more molecules of hydrogens, so this will be give you what RCH2OH। So ester जो है on the reductions they give you what mixtures of alcohols depending upon कौन से अल्कोहल मिलेंगे depends upon what is the nature of HN। ज्यादातर इसमें आपके easy reducing agent can be used, जैसे हाइड्रोजन एंड निकल you can use easier। आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो आपका कंपैरेटिवली कॉस्टली रिएजेंट है, और यू कैन यूज सोडियम एंड इथेनॉल, सोडियम एंड इथेनॉल। सो एस्टर्स ऑन रिडक्शंस, ester on reduction give mixtures of alcohol, give mixture of alcohol, mixtures of alcohol। ठीक है, बराबर दिख रहा है आप लोगों को? अब एक रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस कई बार नहीं पूछते, पर कभी भी आ जाए तो उसके लिए नाम याद रखना, कभी कभार आपके एंट्रेंस ऑप्शंस में हो जाए, वैसे ये नाम दिया हुआ नहीं है। H2H2, one more H, you just take one more H2 molecules, it will be utilized। एक नाम है, थोड़ा रशियन नेम है, पर पता नहीं कौन सी, BUBALT। ओके, एंड ब्लैंक ये वाला आता है, ब्लैंक रिएक्शंस। ओके, रिडक्शंस ऑफ एस्टर्स, reductions of ester by sodium and ethanol। ethanol, listen, अगर आप हाइड्रोजन और निकल लेते हो as a reducing agent, it is not a name reactions, but specifically if you are taking, जैसे आपका ये esters है, कोई भी esters है RCOOR, and you need a nascent hydrogens, and this hydrogens you are preparing instantly by taking ethanol and sodium, so of liberated hydrogens it give you what RCH2OH and ROH, that is known as reactions। So now your task is there, write the, if you got the concept, आपको एक बार आ चुका है, I'm just giving you, note down the answers what you will get in this case। hello, कौन हाँ बोलिए। नहीं पहचानी, नाम एक बार थोड़ा क्लिक हो, ऐसा क्या नाम क्या बताया आपने? ओहो, मैं सुनीता नहीं, मैं नीता सुन रही हूँ, बोल बस ठीक हो। नहीं लेक्चर
सर्कल सब ठीक है। हाँ 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 बराबर बराबर बोल। अच्छा हाँ हाँ गुड कटे है जरूर राजस्थान ठीक है या बढ़िया कांग्रेचुलेशन। बराबर बराबर ठीक है श्योर पहुंच ही जाओ ठीक है। ये हाँ हाँ बस ठीक मजा में। वेतन सामरा फोन करो घर जाना ठीक है। तो फ्री वही तो 8 साढ़े 8 ठीक है ओके ओके बाय। So you will get in this case आपका मिथाइल प्रोपेनॉइड ले रहे हो तो you are getting mixtures of methanol and propanol. Okay, if you are taking isopropyl butanoate so you will get isopropyl alcohol and butanol. बेसिक समझ आ गया एस्टर्स का रिडक्शंस। वेरी गुड। किसका बेटा ये खाली अपना ये कमर घुमा के बैठा दे ठीक है ना। इट इज प्रोपेन टू ऑल है ना। सो क्लियर ध्रुव गुप्ता क्लियर हो गया बेटा ये कॉन्सेप्ट। ध्रुव get the concept गर्व साग्निक आंसर करने। यस मैम यहाँ तक हो गया आपका। So now you write the product in the following reactions by yourself. What are the reductions product you will get in the following reactions with hydrogen and nickel? Benzyl alcohol, ethanol. Listen, in first case apply सारे acid derivatives, you will get benzyl alcohol and ethanol. If you are taking anhydride, they will also reduce in same manner. First वाला है it give you CH2OH और नीचे जो मिलेगा CH2H5 CH2OH. If you are taking this compound, it give you CSPCOH and the side product will be what HCl and water in this case. नहीं वाटर की जरूरत नहीं, it won't be there water. वाटर जो आपका फॉर्म होगा खाली इसमें एन एसिड हाइड्राइड में फॉर्म होगा that will become in the segments और ये आपका इथेनॉल फॉर्म होगा. So clear about those things? हाँ उसको वो वाटर के साथ चला गया रिड्यूस होके. इफ यू जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड आपका यहाँ से एच एच यहाँ से एक एच यहाँ से गया एक एच यहाँ से गया. So you will get this is the way. Then aldehyde further it will be go. So total यहाँ जो है 2 और 2 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स लगेंगे. ठीक है. You need what 4. थर्ड वेव आने वाली नहीं आने वाली.
ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। एक मिनट बाकी है। हाँ, लिख लो। नेक्स्ट प्रिपरेशंस फ्रॉम अब हो गया। अननोन नंबर आया तो 10-15 साल बाद फोन करेंगे साथ में पली बड़ी। पहले तो नाम आइडेंटिफाई, नीता, सुनीत, अब वो फ्रीक्वेंट कांटेक्ट में रहते तो याद रहता। अब कुछ लोग 10-15 साल बचपन के खेले और वापस फोन करते हैं। मतलब these girls, those who are calling me, ज्यादातर वो मेरे साथ मेरी स्कूलिंग लाइफ में मेरे साथ थी, कॉलेज में भी साथ थी। हाउ यू कैन रिमेम्बर सडनली ऑन वो वहां भी कांटेक्ट कॉलेज में हो गया। यहाँ तक बाहर है, ठीक है, कोई बात नहीं, सूख जाएगा। मैं पंखा चालू कर देती हूँ। वहां पैर मत रखना, वो अपने आप हो जाएगा। हो गया पेज, नेक्स्ट ले लो। यस मैम, हो गया। Please, from Grignard reagent, from Grignard reagent, ध्यान देना, आंसर करने हैं। या ओके, when RMGX compound treated with carbonyl compounds, they give addition product which on hydrolysis give alcohols. ओके, अल्कोहल्स। तो देखिए, बेसिक आइडिया ये है आपका, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स होते हैं ये RMGX कंपाउंड्स हैं। दे आर मेनली प्रिपेयर, आपने बेसिक अगर रिएक्शंस याद हो तो कोई भी RX कंपाउंड को अगर आप मैग्नीशियम रिबन के साथ करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्योंकि मॉइस्चर होगा तो आपको पहले भी कराया था कि इट विल बी अंडरगो व्हाट, हाइड्रोलिसिस। सो RMGX कंपाउंड्स के लिए आपको ये कंडीशंस है। RMGX कंपाउंड जो होते हैं बाय नेचर दे आर व्हाट, पोलर। ओके, R पे क्या चार्ज होगा? कैन एनीवन गैस? गर्व, R पे क्या चार्ज होगा? R पे नेगेटिव होगा, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव। तो दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो मेनली यू विल फाइंड अटैकिंग रिएजेंट जो होता है इसमें कौन अट्रैक्ट होगा? R कहां पर जाना पसंद करेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो कहाँ जाएगा? न्यूक्लियस लवर है तो ज्यादातर इट विल बी ट्राई टू अटैक व्हाट, C। ओके, तो यू विल फाइंड इट विल बी प्रेफर टू अटैक हियर। अब कार्बन मैंने कहा इज स्टेबल, 4 ही फ्रेंड्स रखता है, नॉट मोर देन। तो आया है नया फ्रेंड तो पुराना एक इजीली ब्रेकअप होगा पाई वाला, तो दैट मींस यू विल फाइंड हियर। तो R आपका यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, इस C की दोनों वैलेंसी सच रही एंड यू विल गेट O के साथ यहाँ पर Mg+ कहाँ जाना प्रेफर करेगा? ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज आया तो मैग्नीशियम एंड यू विल गो फॉर व्हाट हियर। अब ये कौन सी रिएक्शन है? एडिशन, सब्स्टिट्यूशंस, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शंस इज दिस? एडिशंस। और दूल्हा कौन है? न्यूक्लियोफाइल। तो दिस इज नोन एज व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन का एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस।
तो यू विल गेट व्हाट दिस। अब इस कंपाउंड का अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे, सो यू विल फाइंड ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन इज दैट, तो H और OH का ब्रेकअप इस तरह से होगा आदित्य। You will get, this is the way take place, and you will get the product RC, और यहाँ पर OH, और साथ में क्या फॉर्म होगा MgOH तन्मय है कि नहीं है चिराग? कौन कौन नहीं है? तन्मय नहीं और अक्षर नहीं है? क्या हुआ, वापस प्रॉब्लम चल रहा है तुम्हारे स्कूल में? क्या उसका कुछ प्रॉब्लम है घर में? तन्मय, चिराग, तन्मय नहीं है? कौन कौन नहीं है? अक्षत और तन्मय, बाकी सब आ गए? तन्मय का क्या प्रॉब्लम है? कॉल करो उसको। और तन्मय का, you got the concept? Now try by yourself. I'm giving you compound. Try by yourself what you are getting. You take the compounds is, take R. Try to get answers by yourself. You are taking R and Mg and X. Treat this compound with HCH double bond O. In next segment R, MgX. Treat this compound with CH3CH double bond O. And in third case, you try by yourself by taking R, MgX, and treat this compound with CH3 double bond O. Try to get answer by yourself. What is the answer you are getting in this segment? First in dry ether, then you will find R यहाँ पर आएगा आपका. Okay, R will come here. This is the way R will come. C, इसकी दोनों वैलेंसी पे H और H रहेगा, and this is the final product you will get. और साइड में क्या होगा? MgOH and X. So what you are getting? Primary alcohols. तो अगर आप कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और मिथेनॉल लेते हो, तो it always give you what? Primary alcohol with one more carbon. It give you what? Primary alcohol with one more carbon. सेकंड में क्या मिलेगा बेटा? R ऊपर की तरफ आएगा CH3, नीचे की तरफ H, and then you will get OH. And side product MgOH and X. So you will always get what? Secondary alcohol. Okay, third case में क्या मिलेगा? OH and MgOH and X. You will always get what? Tertiary alcohol. So you get the idea. By using Grignard reagents, you can prepare primary, secondary as well as tertiary alcohol. Tertiary alcohols. तो सबसे पहले आपको ये मिलेगा is one more carbon. So if you need primary alcohol, आपको क्या लेना है? HCHO. If you need secondary alcohol, you have to take R और CH3 adjust कर सकते. You can take any aldehyde other than RMGX. And third में आपको क्या लेना है? If you need a tertiary alcohols, you are going to take what? Ketone. Other than methanol, give you secondary alcohol. Any ketones under the reactions give you tertiary alcohol. ठीक है? So you are clear with this page? 20 clear हो गया बेटा आपका पेज? एक मिनट मैम. Okay, लिख लीजिए. नंबर सेव, एक नंबर सेव कर देती हूँ, अभी आया तो फिर से हो जाएगा. पहचान कौन? अभी जगह तन्मय कहा था इतने दिन?
Clear? Keto. Okay, so write the product by yourself for the following reactions. What are the product you are getting in the following cases? Write the product and give their IUPAC name. What are the product you are getting? Tell me the final answers. First step, perform in dry ether. And second step, you just perform the hydrolysis by warm water. First step, dry ether. Yes, क्या होगा? Very good, correct. You will get. यहाँ पर आपका MgBr का जगह CH2OH आ जाएगा and MgOH and Br. In second case, what you will get? हाँ? इसमें benzyl ring as a substitute taken as a phenyl group. Very good. One phenyl. Very good. The product will be what? One phenyl propanol. And the side product will be what? MgOH. Yeah. In third case, what you will get? Yes. क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा शांति से. Two methyl butane all, and side product will be what? And last case, what you will get? Last case, what you will get? तन्मय कहाँ था? क्लियर? देख लीजिए. लास्ट वाला उसमें C2H5 के बाद बेंजाइल रिंग और C नहीं अटैच होगा, उनमें C2H5 के C के ऊपर आता है. जो लास्ट वाला है उसमें C2H5 का ऊपर रखा है, उसके बाजू में नहीं है. अगर CH3 क्या फर्क पड़ता है? उसका कुछ नाम चेंज होगा? और रिंग फिर हम ऐसे ले लेंगे, जैसे भी लेना है ले ले. वो पानी सूखने के लिए चाहिए. शारदा बहन नेक्स्ट डे आएगी. यानी पेज हो जाए फिर बोलना. तन्मय कैसा चल रहा पढ़ाई तेरा?
तन्मय चैट में आंसर कर दे, माइक नहीं चल रहा हो तो। यहाँ तक क्लियर? 2-phenyl butane 2-ol this is your acetophenone, ये था आपका एसीटोन, ये था आपका बेंजल्डिहाइड, ओके, ये था आपका मिथेनॉल, आपको मिला 2-methyl propane 2-ol, propane 1-ol, this is your 1-phenyl propane 1-ol, this is your 2-methyl butane 2-ol. Is it clear? Clear हो गया सबका? Next page ले लो. Clear to the segments. Now how you will convert ethanol to propane 1-ol, दूसरा कन्वर्जन करिए बेंजाइल अल्कोहल टू 2-phenyl इथेनॉल। कैसे करोगे? दिस इज एप्लीकेशंस कम्स, इथेनॉल से आपको गाड़ी यहाँ से चढ़ानी है और आपको यहाँ से एक सी बढ़ाना है, एक सी बढ़ाना है। So now give me the answers. What will happen if you treat this compound with SOCl2? What you will get? OH will be replaced by Cl. So you will get CH3, CH2, Cl. Now what will happen if it is treated with magnesium in presence of dry ether? MgCl. Now what will happen if it is treated with HCHO? In first step, take solvent dry ether, and second step, you just treat it with water and hydrolyze it. मिल गया आंसर? ओके, इट्स सेकंड आपको अपने आप करना है स्मार्ट बेंजाइल अल्कोहल and you have to reach here 2-phenyl ethanol. You have to tell me what is the answer for this question. ऐसे ही जाना है, अपने आप लिख के पहुंच जाओ। So organic, this set of questions a student come, I have a problem, organic नहीं समझ आता और ये वाले क्वेश्चंस लेके आते हैं और इक्वेशन एक नहीं आती होती है, थप्पड़ मारने को मन होता है। If you have a equations, if you have a content, then we can touch. These are known as what? Interconversion questions. Which concept will applicable? तो याद रखना ascending conversion में हम Woods reactions use करते हैं, KCN reactions use करते हैं, and we are using this reactions Grignard also. आपके एक से ज्यादा पॉसिबल भी आंसर होते हैं, पर अभी लेटेस्ट आपको ग्रिग्नार्ड करा रही थी, तो दैट्स रीजन आई एम गिविंग यू द आंसर टू यू। ओके, सो आंसर क्या होगा बड़ा आपका? हो गया सबका? ऑनलाइन वालों का गर्व गोयल, ध्रुव, तन्मय, संजना, लिख लो आंसर अपना, प्रैक्टिस लिख लीजिए, लिख लीजिए, मैं राउंड ले रही, ठीक है? कितनों को आ गया?
विशाखा। देवांशी आई है चिराग? देवांशी प्रेजेंट है? हो गया आंसर? Now note down the conversion. Convert ethanol to butane-1-ol. Okay. Ethanol to butane-1-ol. उसके लिए कॉन्सेप्ट लिख लो। कोई भी RMG कंपाउंड को इफ यू ट्रीट विथ साइक्लिक इपोक्साइड, इपोक्साइड साइक्लिक ही होती है, जिनको पता है इपोक्साइड साइक्लिक ही होता है। ओके, सो यू विल फाइंड व्हाट यू आर गोइंग टू टेक द रिएक्शंस इन ड्राई ईथर। R आपका नेगेटिव है, Mg पार्शियल पॉजिटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये R जाके किससे चिपकेगा? So you will find R will be attracted by, और मैग्नीशियम किसके साथ लटकेगा? Oh, so you will find CH2, CH. Of O, MgX. If this compound you hydrolyze by taking warm water, you will find what RCH2, CH2, OH and magnesium hydroxychloride. So, Krish Patel, how you will convert ethanol to butanol? Your target is you have to take ethanol and you have to reach here butanol. क्या करना है बस? But this is OH. Okay. SOCl2. क्या मिलेगा? अब क्या करूं? अब पूरा तैयार है। अभी इथाइल पिया हुआ पड़ा था, ठीक है ना? अभी पिया हुआ पड़ा था, बटे के लिए तैयार है, ठीक है ना? ठीक है ना? तो यू हैव टू प्रिपेयर इट फर्स्ट। अब तक पड़ा था इथेनॉल लिया हुआ, ठीक है ना? अब मैं कहूँ इथेनॉल टू ब्यूटेन टू ऑल। अलीना कैसे करोगे ब्यूटेन टू ऑल?
Sagnate. So it is a secondary alcohol, not primary हाँ alcohol. तो उसमें जो OH है वो इसकी ब्रांच पे रखते हैं, नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। पहले इसको तैयार करोगे, हाँ वो सब तो हो जाएगा, CH3CH2 पहले तैयार करने तक पहुंच जाओ, उसके बाद आज ही तो नोट्स लिखा है, थोड़ा अक्ल उधर दौड़ाओ, तब सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, एक्सेप्ट मिथेनॉल। तो कौन सा एल्डिहाइड लूं? दो तो इधर से आ रहे हैं, कौन से कितने कार्बन वाला एल्डिहाइड लूं? वत्सल, आदित्य कितने कार्बन वाला एल्डिहाइड लेना है? दो कार्बन वाला एल्डिहाइड का नाम क्या होता है? इथेनॉल। Okay, so you will get what? Ethanol. And in second step, side product. ये अपने आप करना आपको, लास्ट वाला। जब एक आंसर आएगा मतलब समझ आया, फिर मैं आगे पे जाऊंगी। वेरी गुड, बस आ गया तेरे, ठीक है ना? वो एग्जाम में नहीं आता, आ जाएगा एग्जाम में, ऐसा ही पूछना, ऐसा घुमा फिरा के पूछना, उसमें वो क्वेश्चन टर्शियरी अल्कोहल है तो आपको हमेशा क्या लेना है? कीटोन लेना है। सेकेंडरी चाहिए तो आपको एल्डिहाइड लेना है अदर देन मिथेनॉल, असेंडिंग कन्वर्जन। और प्राइमरी चाहिए तो आपको मिथेनॉल लेना है, असेंडिंग। अब तक ये इतना हो गया। नेक्स्ट प्रिपरेशन लेते हैं। पूरा दिमाग समझ रहा था, समझ नहीं, अब समझ गए? मुझे समझ में आ जाता है, आंसर नहीं सब लॉजिक उस टाइम पे जब चलना चाहिए ना तब नहीं चलता। उसमें कचरा कम डालो, फाइलें कम खोलो, नोट जल्दी होगा। यू नो कैपेसिटी ऑफ योर कंप्यूटर, है ना? हाँ तो सर्वर डाउन मत होने दो।
वहाँ पे वो क्या बोलते हैं CH3CHO के बजाय CH2 आएगा। वही आएगा ना। Yes. Now give the heading. उनको जो लिखना वो लिखना राहुल गांधी हाँ, इधर आ जाओ। सही है बेटा, प्रॉब्लम नहीं, करेक्ट। सही है। So done. Shall we go to next? हमें एक्स्ट्रा You are taking acid chloride. And I'm taking, for example, methyl. You can take anything, ठीक है ना? I'm taking methyl magnesium chloride. Okay. In the presence of dry ether, can you guess methyl group किसके पास जाएगा? Methyl group is now electronegative. Magnesium पे partial positive. कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो कैन यू गैस मिथाइल ग्रुप किस पे जाएगा? इट विल बी गो टू दिस कार्बन। सो रिएक्शंस क्या होगा? आर, ये जाके मिथाइल ग्रुप चिपकेगा इस कार्बन को, चिपक गया। ऑक्सीजन नेगेटिव है, हो गई, तो उस पे मैग्नीशियम क्लोराइड निकल गया और Cl। अब जब एसिड क्लोराइड लेते हो बेटा, आपके दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपका 1 मोल लिया जाए तो क्या मिलेगा, और एक्सेस में लो तो क्या मिलेगा। ये जो कंपाउंड्स है, यू विल फाइंड द रीअरेंजमेंट रिएक्शंस टेक प्लेस इन दिस मैनर। Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पूरा का पूरा पेयर लेके निकलेगी। जैसे ये Cl निकल गई, यू विल फाइंड एज अ Cl माइनस, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये ऑक्सीजन जो नेगेटिवली चार्ज है, इट विल बी शिफ्ट दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर। So you will find what when you are taking 1 mole of Grignard reagent, अगर आप ये ले रहे हो, you will get what CH3, और आपका साथ में क्या बनेगा, MgCl2। तो आपका एंड प्रोडक्ट जो होता है एसिड डेरिवेटिव और 1 मोल Grignard reagent always give you what carbonyl compounds। R अगर आपका यहाँ पर H है तो it give you aldehyde, and R is other than H, then it give you what ketone। So it depends what you are taking। So ये कई बार आपके क्वेश्चंस होते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, व्हाट यू विल गेट। ये अब आपका जो बना है, इफ यू आर टेकिंग, इफ एक्सेस ऑफ CH3 MgCl is there, MgCl is there, अगर आपका Grignard reagent एक्सेस में है तो यू विल फाइंड व्हाट, ये जो RC डबल बॉन्ड O बचा है CH3,
तो अभी जो रिएक्शन सिखाई थी वो फिर से होगी CH3 MgCl and you will get what? Dry ether here. What you will get in this case? R C and you will get what? एक और CH3 किसको आके चिपकेगा? So you will find partial negative charge इस पे है, positive charge इस पे है. So you will get what? It will be attack here. This is the way movement will take place of these things. तो एक और मिथाइल ग्रुप यहाँ पर आएगा and you will get what? O minus MgCl. The adduct form in this manner, it will be hydrolyzed by water in the presence of acid, give you what? R C OH CH3 and the side product will be what? MgOH and Cl. ठीक है? Clear? So suppose if I will take the examples, if I'm taking, you have this compound CH2 C double bond O CH3, sorry, CH2Cl. Treat this compound with 1 mole of C2H5 MgBr. Okay, MgBr या MgCl, आपको Mg mixed salt में साथ confuse नहीं हो जाओ, तो then I just take MgCl. Try to get the answers. What you will get in this case? You are taking MgCl. यहाँ पर आप MgCl ले रहे हो. What is the main product? आपके by product main में है. A क्या मिलेगा? That you have to identify. And if you are taking 1 mole C2H5 MgCl, in first step you take in dry ether, and in second step you hydrolyze with water. Hydrolyze with water in H plus ion. Find the final product P. Correct. In this case, you will get what? ठीक है, तो आपको समझ आ गया आपका प्रोडक्ट क्या होगा इस केस में. तो थोड़ी जगह करके क्रिएट करके लिखती हूँ. तो प्रोडक्ट यू आर राइट, गैस वर्क आपका सही है. इफ यू आर टेकिंग C2, हाँ सही है, आंसर सही है. सॉरी, नॉट गैस वर्क, आंसर सही है. ठीक है, डोंट टेक दिस थिंग. CH2 C double bond O and C2H5. Okay, this will be the product and byproduct will be what? MgCl. नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा अलीना? बी क्या होगा अलीना? व्हाट विल बी फाइनल आंसर इन दिस केस? मिथाइल फिनाइल पेंटेन 3 कॉम्प्लेक्स है. मिथाइल के ऊपर फिनाइल है. ब्रैकेट आएगा 3 ब्रैकेट मिथाइल फिनाइल पेंटेन 3 और कॉन्सेप्ट सेम है बेटा. Finish.
बदनाम हो गए। जोरदार है। बड़ा लेक्चर करते अच्छी टाइमिंग है। स्टैंड अप कॉमेडी करवा सकते तुमसे कभी। Shall I go to next please? So similar way concept थोड़ा सोचने का कोशिश करिए। I'm taking a esters. I'm taking C2H5. This is your ethyl format. Ethyl format. Treat it with first 1 mole of methyl magnesium bromide. क्या मिलेगा बेटा? Dry ether. So if you just see, methyl is a negative charge, magnesium positive है. So you will find what negative और ये positive और ये negative है, ठीक है ना? तो CH3 किस पे जाएगा? कार्बन पे जाएगा. So what you will get? H डबल बॉन्ड की जगह OC2H5 as such रहेगा and यहाँ पर आपका नया CH3 लगेगा and you will get what here? O और MgBr. अब इसका जब हाइड्रोलिसिस करोगे बेटा तो 2 OH आएंगे which immediately lose a water molecules. आपको पता है कि 2 OH कभी एक साथ रह नहीं सकते, तो it will be result into what? Formation of this compound. अब instead of going increasing step, we just explain कि hydrolysis में ये reactions में ये यहाँ गया and you are getting this is the way the movement will take place. तो आपका जो है magnesium with OBr and OC2H5 it will be removed in this process. You are getting what? अब अगर आप इसको excess of, if you treat this compound with excess of methyl magnesium bromide, again what you will get in dry ether? What you will get? ये आपका इथेनॉल है बेटा, तो कोई भी फॉर्मेट एस्टर लेते हो बेटा, and if you are treating with RMgX, it give you R आपका जो Grignard reagent का R जुड़ जाएगा, and you will get what? Aldehyde. This aldehyde on treating with excess of Grignard reagent, what you will get? Okay, you will get what? One more CH3, it will be introduced here, and it will be give you what? OMgBr, and this on hydrolysis, this on hydrolysis give you what? HCOH, CH3, and you will get what? Magnesium hydroxybromide is side product during this reactions. Okay, same way if I will take same answers, you try to get answers by yourself. If you are taking C2H5 and you are taking C3H7 MgBr, in first step what will be your A and what is your B? C3H7 और ऊपर MgBr, उसका नाम नहीं पता किसी OMgBr So compound A is butanol and compound B will be C3H7 MgBr. In ether
In second step, hydrolyze it. ठीक है, got it? मैं यहाँ पे H2O नहीं आएगा। कहाँ पर? वो एक्सेस में CH3 MgBr लिया उससे पहले H2O नहीं आएगा। उसमें डाई। जब तक कांग्रेस डूबेगी नहीं। हाँ? फेमस हो गया यहाँ तक? आपका चैप्टर 1 के एमसीक्यू पूरे हो गए थे? चल नेक्स्ट देखिए कितनी बात। वीक आपको जनवरी हो गया, सैटरडे आई क्या हो? Now that's there may be need to be 2 बार लाया। आज इस बार आज टुडे TOI में था, उन्होंने स्टैटिक्स के साथ किया कि एटलीस्ट एसएटी की तरफ फेयर चांस मिला, तो कई बच्चों का रिजल्ट इम्प्रूवमेंट था। एक बच्चे का फर्स्ट ट्रायल में 11.1% और लास्ट थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में 99.9%। So they argue कि नीट एक बार हो रही है, it is not fair, child should get a chance। इन फ्यूचर आ सकता है। दो कट ऑफ इज गोइंग लो। जेई का कट ऑफ डे बाय डे लो जा रहा है। परसेंटाइल इस बार 67 परसेंटाइल कट ऑफ है, लोवेस्ट है। डे बाय डे एवरी ईयर्स जेई का कट ऑफ नीचे की तरफ जा रहा है, प्लेन ऐसे डाउनवर्ड लाइन। नाउ सम ऑफ द पेरेंट्स की नहीं गुचकेट कर लेते, 11th जी लेते। मेरे पास अभी जो बच्चे, no, some of the mathematics students
Some of the math student they think, listen. Engineering, Harsh, in the engineering 50% seats are filled up on the basis of JEE and 50% of the basic which get. So few students they are thinking why we will take 11th we enjoy, 12th we will focus. साथ में एक ही बेंच पे बैठने वाले. गुजरात स्टेट कोटा की तो कॉलेज हो सकता है वो गुजकेट में ज्यादा परसेंटेज देट में गेट अ फेयर चांस टू गेट अ बेटर पोजीशन. नेक्स्ट हो गया आपका. नाउ जस्ट नेक्स्ट बाय डू बाय योरसेल्फ. इफ यू आर टेकिंग प्लीज think by yourself. If you are taking क्या मिलेगा? CH3 MgBr. What you will get in first step taking dry ether. क्या मिलेगा? मेन इंटरमीडिएट नहीं चाहिए. प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? You will get CH3 double bond O CH3. If you are taking further CH3 MgBr, what you will get? Yeah, correct. So if you are just taking other than formate esters, okay, if you are taking other than formate esters, ethyl propanoid, other than that esters, it give you final product is tertiary alcohols. Clear आ गया आपका concept? You are clear with this? So if you are clear with the segments, okay. Double bond O C2H5. What is the product you will get if you are taking 1 mole of methyl magnesium bromide? Okay, identify X and Y. X क्या होगा? सही है, prop 2 on. What will be Y? Mg OC2H5 and Br. Very good. So clear. So clear up to this page, Sagnik? Yes, ma'am. मैम 1 मिनट लिखना बाकी है. हाँ लिख ले बेटा.
Miss, miss. हो गया मैम। From primary amines treated with nitrous acid, here you are going to take alkyl amine, take in the presence of HCl, temperature requirement 273 to 278 Kelvin. You are getting Rn2 plus Cl minus. ज्यादातर आपके जो अल्काइल डाइएजोनियम क्लोराइड, एजोनियम क्लोराइड्स, they are unstable because they unstable, which immediately break down by using. So here you will find two water molecules will be generated. One water molecules it is utilized immediately and give you what respective alcohol, nitrogen and HCl as a side product. अब आपका जो HNO2 है, HNO2 prepared in situ by the reactions of NaNO2 and HCl. So what we are doing is we are taking sodium nitrite and HCl, which give the reactions NaCl and HNO2. So whether it is written HNO2 directly or indirectly, the product will be that. ज्यादातर आपको जो है, suppose if you are taking ethyl amine, आपको questions पूछा हुआ है ethyl amine और ethane amine, common या IUPAC जिससे भी पूछा है. Here is what you will get if it is treated with HNO2 and HCl. Suppose if I give you benzyl amine, ध्रुव गुप्ता क्या मिलेगा? Tell me the final product only. Intermediate नहीं चाहिए आपको. So you will get here ethanol, bubbles of nitrogen plus H2O. Okay, आपका दो water molecule generate होता है, one utilized immediately, तो HCl will remain as such. Here, तो HCl यहाँ catalyst का काम करता है, वापस regenerate होता है. CH2OH, you will get benzyl alcohol, bubbles of nitrogens and water molecules form as a side product in these reactions. So clear about this? Clear the concept?
पानी सूखा नहीं सूखा? ठीक है। So clear up to this? ये पेज हो गया सबका? Yes. विरल, विराज, विराज पटेल, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? क्लियर? आदित्य जग रहा है क्या? आदित्य देख लो। वत्सल, आदित्य जग रहा है क्या? Now go for preparations of phenol. अब तुम्हें आंसर देना है. I'm not going to give the answers. Okay. So we are starting with chlorobenzene. First from chlorobenzene. Yeah, this is we already did. वर्सल क्या होगा क्लोरोबेंजीन को अगर आप किसके साथ ट्रीट करोगे? NaOH 2 मोल 6 to 8%. अगर परसेंटेज याद नहीं रहे तो राइट कंसंट्रेट. एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं याद रहे तो राइट कंसंट्रेट. व्हाट टेम्परेचर्स? 623, 200 to 300 bar pressures. Side product will be what? NaCl and water. What is the intermediate you will get? Sodium phenoxide. Sodium phenoxide. The sodium phenoxide, if you just treat with HCl, hydrolyze in the presence of HCl, what you will get? Phenol. You will get phenol. NaCl is a product in this case. अब alternative क्या होगा? जानकी, इस क्लोरीन को अगर मैं ट्रीट करूं फिर से क्लोरीन एंड एनहाइड्रस AlCl3, फिर से क्लोरीनेशन, I will get O क्लोरो और P क्लोरो मिलेगा. ठीक है ना? बाई प्रोडक्ट HCl. What you will get if you are taking concentrate NaOH in the axis 4 mole. ठीक है? Okay, 4 mole. And then you are taking first step, you will heat it. Temperatures आपका रहेगा बेटा 650 to 850 Kelvin and pressure 200 to 300 bar. And in second step, you hydrolyze using water and HCl. क्या फॉर्म होगा फाइनली? क्या होगा? शेप क्या होगा? वेरी गुड, गुड गर्ल. इसका नाम है हाइड्रोक्सी क्विनॉल और IUPAC नेम बेंजीन 1,4-डायोल और बेंजीन 1,2-डायोल इज नोन एज. अगर तुम कर रहे हो, if you are taking CH3Cl and anhydrous AlCl3, what you will get? This is your FC alkylations, CH3, and here you will get another compound Cl and CH3. Same manner, take 2 moles NaOH. Okay, NaOH concentrated and then high temperatures 850 Kelvin and 300 bar pressure, and then you hydrolyze the compounds in the presence of that. What you will get?
4-methyl phenol, which is also known as O-cresol and P-cresol. तो ये आपका हो गया कैटिकॉल और ये आपका O-cresol और P-cresol. नोट डाउन कर लीजिए. Note down. शॉर्ट कर लीजिए. अगर मेरी टी-शर्ट पहनी हो जाएगी मुझे ये जरा इधर कोच हुआ सभी यही तैयार से दिया. पकड़ी जाएगी. इस तरह आ जाओ. इस तरह इधर से अच्छा दिखता है. क्या करूं चलिए वो नीचे हुई है. मेन कॉन्सेप्ट ऊपर लिखा है व्हाइट वाला जो डिजिटल हो सकता है एप्लीकेशन. विशाखा देवांशी क्यों नहीं आई बेटा? बाहर है? पता नहीं है मैम. एज बोली है सू बोले मी वो वाला टॉक्सिक हो जाएगा. नहीं हम तो एम मतलब वो कैसा टॉक्सिक होता है. बीज मम्मी करो बस राजू बस
हो गया मैम। हो गया। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट प्रिपरेशंस। चलो मुझे जल्दी करना है, चलो। नेक्स्ट नोट डाउन लिख दीजिए। नेक्स्ट प्रोसेस फ्रॉम बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड एनिलीन डाइएज़ोटाइजेशन करोगे, you will get voice. Second preparations, aniline अगर डाइएज़ोटाइजेशन करोगे तो you will get benzene diazonium chloride. उसका अगर आप वार्म वाटर के साथ H2SO4 करोगे तो डाइएज़ो ग्रुप निकल जाएगा as a bubbles of hydrogens and you will get HCl as a side product in this case. Note down the second preparations. यहाँ से second preparations how you will prepare from BDC Dow process के बाद। तो ये आपने BDC प्रिपरेशन सैंडमेयर प्रोसेस में सीखा था। ठीक है यहाँ तक डन। हो गया बेटा सबका। यस मैम। The next preparations from benzene sulfonic acid. अगर आप बेंजीन को ओलियम के साथ ट्रीट करते हो, you are getting benzene sulfonic acid, which on fusion with sodium hydroxide first gave sodium salt of benzene sulfonic acid, which further fusion with NaOH at temperature 573 gives sodium phenoxide, which on hydrolysis give phenol. पर अगर आप फ्यूजन दो बार कर दो सल्फोनिक एसिड का, आप दो बार करते हो तो SO3H ग्रुप है वो आपका मेटा डायरेक्टिंग है बेटा, तो दो जगह SO3H ग्रुप आएगा, which on fusion with NaOH give you resorcinol as a final product. Resorcinol as a final product. So this is a third preparations of phenol using benzene sulfonic acid. Note down. ऊपर वाला है कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट आपके वैसे ही ले रही है। मेटा डायरेक्टिंग है, हाई टेम्परेचर चाहिएगा 80 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर दिस रिएक्शन।
Clear concept up to this? हो गया पेज? ऑनलाइन वाला हो गया सर? बाकी है थोड़ा। लिख लीजिए। इसके बाद आपका क्यूमीन प्रोसेस, मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट प्रोसेस, जो लास्ट है फिनॉल की प्रिपरेशन। अभी टॉपिक वी हैव स्टिल 15-20 मिनट्स। डन? मैम। हो गया बेटा रिया? हाँ मैम हो। Okay. The next preparations is cumene process. Understand the process. If you are taking modern industrial production for phenols, you take benzene and propene in presence of acid. Mainly it produce आपका secondary carbocation, or you just take FC alkylations. Your product will be what isopropyl benzene, which is commonly known as cumene. इसको अगर आप एयर के साथ रिएक्ट कराते हो, okay, at temperature 638 to 408, you will get cumene hydroperoxide, which on hydrolysis give you phenol and acetone. इसमें आपके जो reactants required है वो ज़्यादा beneficial है, और side product है, that is also byproduct is also important for industrial point of view. So that is the reasons ये वाली reactions use की जाती हैं. एक्स्ट्रा अगर कभी आपको शॉर्ट में पता ना, यू कैन टेक ब्रोमोबेंजीन, ट्रीट विद फॉर्म ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इस फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को अगर आप एयर के साथ रिएक्ट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट ईथर, यू विल गेट इंटरमीडिएट. दिस इंटरमीडिएट ऑन हाइड्रोलिसिस गिव यू फिनॉल. तो दीज आर द अल्टरनेटिव ऑप्शंस में आप कर सकते हो फिनॉल. This is another way to prepare it. So all the preparations of phenols clear. We have to go with a small topic, how to go with what physical properties, and next lectures we will start with the chemical properties of it. Physical properties में mainly we have to focus melting point, boiling point, and solubility. So 2 pages or more to go with this. हाँ बोलिए बेटा. लिख के करोगे याद रह जाएगी. लिख के और समझ के करिए कि क्या हो रहा है, अपने आप रह जाएगी. It need organic is volatile branch. It need a repetitive revision. So I'm just telling you go through and solve the questions based on that. Make a flow chart. Reactions के आपके बना दीजिए. सारी एग्जाम्पल इक्वेशन नहीं बेटा, जो कॉन्सेप्ट इक्वेशन उनके दैट आई विल शेयर इट. और आपका उसमें है शायद मॉड्यूल. इस बार हमसे देर हो गई इसको. Come with your Akash questions, we will discuss here. रिंग एक्सपेंशन के अलावा बाकी सब है. कहो तो मोलारिटी और वो हो गया, तो इस सैटरडे से ही मैं तुम्हारे क्वेश्चंस ले लो हेलो अल्केन के. फर्स्ट चैप्टर आता है. संडे को क्लास होगा. संडे कहाँ पहुंचना होता है? वो उनकी एग्जाम होती है 7:30 से 8:30. हमने क्या किया उसका क्या ये देखो क्या 3 बजे उसके आप एक स्टूडेंट लाइफ
वाले के अलावा कुछ नंबर होते हैं। हो गया मैम। होगा उनको हो गया यहाँ तक सबका। So now understand physical properties of alcohols and phenols. Please. आप alcohols और phenols में intermolecular force of attraction से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। R आपका अल्काइल या फिनॉल ग्रुप है, ठीक है, और OH है वो पार्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है और R वाला जो पार्ट है वो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करता है। So if you just look, number of carbon remain same. If you are comparing any hydrocarbon, haloalkane and alcohol, okay, alcohol phenol, so you will find ये आपका hydrocarbon non polar, they have dispersion forces. आपका haloalkane जो होता है वो polar, they have dipole attractions. और अल्कोहल जो होता है बेटा दे आर पोलर, दे हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू डाइपोल अट्रैक्शंस एंड डिस्पर्जन। तो इथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है फ्लोरो इथेन से ज्यादा होगा और उसका इथेन से ज्यादा होगा। सेम मैनर फिनॉल हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इन कंपैरिजन ऑफ क्लोरोबेंजीन व्हिच हैज अ हायर देन बेंजीन्स। लेट्स मी फिनिश ऑल द एक्सप्लेनेशंस दैट यू नोट डाउन। Suppose if, okay, note down, लिख लीजिए ये पेज, finish this page, then I am explaining, मेरे को समझा देने दो, then you just note down. दो पेज है, तीसरा वाला नहीं लोगे, केमिकल रिएक्शंस वाला पोर्शन अभी चालू नहीं करूंगी। हेलो, हाँ हाँ ठीक है मैम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं मैम, शेयर कर दो। हो गया आपका? हाँ मैम हो गया। हो गया, देख लीजिए। सीबीएसई वाले बच्चों को तुम इसमें से देखते हो, अगर ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चाहिए तो आपका सीबीएसई के बच्चों को वो काम आती है अच्छी से। बुक्स एक दो बताऊंगी, गुजरात बोर्ड वाले तो अपना बराबर बेटा दैट गो विद योगी, एमसीक्यू वाले हैं। ओके लिसन, if someone asks methanol, ethanol, propanol and butanol, what is the order of melting point and boiling point in this case? Listen, आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही रह रहा है क्योंकि एक OH है, पर आपका R का साइज बढ़ रहा है। सिंस R का साइज मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बढ़ेंगे, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे। अगर आपको आइसोमरिक अल्कोहल पूछा जाए जिसमें आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास सेम हो, जैसे ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल और 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, दैट इज स्टार्ट ब्यूटाइल अल्कोहल्स,
So you know the same concept, OH same है, तो strength of hydrogen bonding same है, molecular mass है, then you know that branching increase होती है तो surface area decrease होता है, इसलिए van der Waals force of attraction है वो कम हो जाएगा, इसलिए melting point, boiling point decrease with branching. सपोज आपका सेम कार्बन चेन है, एक में एक OH है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ OH ग्रुप बढ़ते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बढ़ती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और विस्कोसिटी है वो बढ़ेगा. अब सॉल्युबिलिटी जो होती है बेटा, वाटर इज पोलर, अल्कोहल इज आल्सो पोलर, एंड अल्कोहल में OH it can equally form strong hydrogen bond the way it is formed by the water. So that's the reason अल्कोहल का RO जो पार्ट है वो आपका पोलर है और ये आपका नॉन पोलर है. अगर R का साइज छोटा है तो OH डोमिनेट करेगा, तो यू विल फाइंड दे आर वाटर सोल्यूबल. तो ज्यादातर, पर जैसे जैसे सरफेस एरिया एंड साइज ऑफ R बढ़ती जाएगी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी. जैसे जैसे नंबर ऑफ OH ग्रुप बढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ेगी. लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट, देन यू जस्ट राइट. अब ऐसा क्यों है? तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अल्कोहल है, दे कैन इजीली फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड. तो जैसे आप मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ले रहे हो, यहाँ पर R की साइज जैसे जैसे बढ़ती है, दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होता जाएगा. तो मिथेनॉल इज हाईली सोल्यूबल, ब्यूटेनॉल कम है. पर अगर आप आइसोमरिक अल्कोहल ले रहे हो तो इन दैट केस ब्रांचिंग जो है बेटा सरफेस एरिया कम करती है. तो सरफेस एरिया अगर आपका ब्रांचिंग के कारण सरफेस एरिया कम हो रहा है तो डिस्टेंस बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल कम हो जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी. तो टर्शियरी अल्कोहल है, दे आर मोर सोल्यूबल इन कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी. अगर आपका एक है इथेनॉल है और इथेन 1,2-डायोल है तो ये ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इट विल बी मोर सोल्यूबल इन 1-ऑल में. अब जैसे आपका है नॉर्मली क्वेश्चन है व्हाई द फिनॉल इज नॉट कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर. तो फिनॉल में OH तो है पर बेंजीन रिंग काफी बल्की है, हाइड्रोफोबिक पार्ट काफी बल्का है, इसलिए फिनॉल है वो कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं, पार्टली सोल्यूबल होता है. बट सोडियम फिनॉक्साइड इज वाटर सोल्यूबल. एक्सप्लेन. देखिए बेटा फिनॉल आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसमें OH बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है, बट सोडियम फिनॉक्साइड इज आयोनिक सॉल्ट एंड एज यू नो आयोनिक सॉल्ट्स आर व्हाट वाटर सोल्यूबल्स. ओके, ये पार्ट आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में लूंगी. नोट डाउन दीज 2 पेजेस एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे. ये पेज नोट डाउन कर लीजिए.